ਹੈਲੋ +2 ਕਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਕਰੰਟ ਐਜ਼ ਏ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ electric current in conductors and direction of current। ठीक है, ये टॉपिक आप पढ़न जा रहे हैं। वैसे देखो जनरली आप गल करिए वट इज़ करंट। फ्लोइंग चार्जिज हैं, चार्ज फ्लो करता जदों आप उदों कहने हैं कि इलैक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्वांटिटेटिवली आप गल करिए इलैक्ट्रिक करंट नूं डिफाइन कर सकते हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज through any cross section of a conductor। rate of flow of electric charge through any cross section of conductor मतलब current is equal to total charge flown, चार्ज ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिनोट करते हैं Q ਨਾਲ, and time upon T, Q upon T, Q upon T is equal to current। करंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिनोट करते हैं I नाल, I is equal to Q upon T। दिस इज जनरल डेफिनेशन है दी, बट थोनों की शो रहा इत्थे लिखा होया I is equal to dQ upon dt। देखो बच्चे करंट्स यूजली स्टडी नहीं होंदे हैगे, स्टडी मतलब लगातार नहीं होंदे हैगे, ये चेंज होंदे रहंदे हैं। सो जनरली ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ डी क्यू है नैट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस आ क्रॉस सैक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ਜਿਹੜਾ डी क्यू है दिस डी क्यू इज़ नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस आ क्रॉस सैक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन टाइम डी टी, ठीक है। देन वट विल बी आई विल बी डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ डी क्यू अपॉन डी टी इस ਇਹ फस्ट डेरीवेटिव है क्यू ਦਾ, ठीक है। सो आप कह सकते हैं करंट थ्रू अ कंडक्टर एट एनी टाइम इज डिफाइंड एज द फस्ट डेरीवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई रिपीट, किसी कंडक्टर दे विच करंट पास थ्रू कर रहा है किसी भी टाइम, उन्होंने आपां किवें डिफाइन करांगे, फस्ट डेरीवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पासिंग थ्रू अ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। किसी क्रॉस सैक्शन च कंडक्टर दे कितना चार्ज किन्ने टाइम च पास कर रहा है। नैक्सट है अपने को डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन होंदी है फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, ठीक है। इस तो पहला तुहानूं एक रिपीट करा दिंदी हां करंट कैरीयर वाला। कंडक्टर दे विच करंट कैरीयर जिवें कि आपां मैटल लै लो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਤੋਂ पॉजिटिव एंड वाल इलैक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। देखो ई नाल शो होया हुआ इस तरह करके जेडे इलैक्ट्रॉन है फ्लो करन लग जाते हैं। दिस इज़ नैगेटिव एंड, दिस इज़ पॉजिटिव एंड, ठीक है। तुहानूं शो भी हो रहा है जिहड़ी वड्डी लाइन है वो पॉजिटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नैगेटिव, ठीक है। वंस अगेन मैटल दे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਆਫ ਬੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਫਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟੂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਹੀਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅ ਬਾਡੀ ਐਟ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਕੱਢੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ? ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ A ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ along AB, ਮਤਲਬ from higher potential, this is higher potential, to lower potential, this is lower potential। ठीक है, बट इलैक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होंगी है फ्रॉम नैगेटिव एंड B टू A। ठीक है, ये फर्क है कन्वेंशनल करंट ते इलैक्ट्रॉनिक करंट च। बट एक्चुअली कन्वेंशनल करंट वर्गी टर्म कोई एग्जिस्ट नहीं करती हैगी। ठीक है, क्योंकि जिहड़ा चार्ज है वो नैगेटिव एंड तो पॉजिटिव एंड वाल ही फ्लो करता हुंदा है। राइट, उस तो नैक्सट आ जाओ, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैं हुण तुहानूं कह रही हाँ करंट स्केलर है। ठीक है, तुसी +1 च पढ़िया कि स्केलर क्वांटिटी किहड़ी हुंदी है जिहदा ओनली मैगनीट्यूड हुंदा है, बट वैक्टर क्वांटिटी किहड़ी हुंदी है जिहदा मैगनीट्यूड भी हुंदा एंड डायरैक्शन भी हुंदी है। हुणे मैं तुहानूं कह रही हाँ कि करंट की डायरैक्शन पूरी समझा के हटी हाँ। ठीक है, पिछली स्लाइड च नाउ मैं तुहानूं ये भी कह रही हाँ कि करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ इट इज़ स्केलर? देखो करंट फ्लो कर रही है इस I0। ठीक है, उस तो बाद ये सपोज कर लो पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B। ठीक है, B पॉइंट ते आके मान लो जंक्शन ते आके दो डायरैक्शन दे विच करंट डिवाइड हो जाता है। एक डायरैक्शन है BC, एक डायरैक्शन है BD। I2, दिस इज I1। I0 करंट जिहड़ा हैगा दो डायरैक्शन च डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। आपां इलैक्ट्रिक करंट नूं रिप्रजेंट करते हैं डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि करंट फ्लोज फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। जदों आपां I0 दा ऐड करना है, I0 दसना है भी कितना करंट है, दैन वी विल से इट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, यह स्केलर एडिशन नाल सिंपल अलजैब्रिक एडिशन नाल करंट ऐड करते हैं आपां, इस करके ये स्केलर क्वांटिटी है। इस नूं हुण आपां वैक्टर दे नाल ऐड नहीं करते हैगे। ठीक है, इस करके एक होर एग्जाम्पल देख लो, एक होर डायग्राम नाल एक्चुअली समझा दिन्नी आ मैं तुहानूं। यह डायग्राम भी तुसी कॉपी ते बनाना है।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ आई नॉट, ठीक है। ਇਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ डायरेक्शन आ गई, एक इस तरह डायरेक्शन आ गई, ठीक है। दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, ठीक है, बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन बनाती। हुण इस च भी आई नॉट की वैल्यू कितनी होएगी, इट विल बी इक्वल टू I1 सिंपली प्लस करके I2, ठीक है। इस करके आपां, क्योंकि देखो एंगल तो बन रहा है, हुण एक अपने कोले वायर सीगी, एक इधर नूं वायर चली गई, एक इधर नूं वायर चली गई, आफ्टर ऑल एंगल तो बन रहा है ना, ठीक है। इस वायर नाल कोई ना कोई एंगल बन रहा है, पर यह एंगल करंट की मैगनीट्यूड नूं बिल्कुल इफेक्ट नहीं करनगे, टोटल जिन्ना भी करंट है उन्होंने बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करनगे, ठीक है। यही डायग्राम भी तुसी कॉपी ते ड्रा कर लेना है। हाँ जी, उस तो अगे आ जाओ, ये मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि कन्वेंशनली करंट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता हैगा। एक न्यूमेरिकल है अगे, हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग per second through any cross section of a conductor constitute करंट ऑफ 1 एम्पीयर। इस मैं थोड़ा हिंट दे दिनी हाँ, तुसी ये न्यूमेरिकल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर लिख के देना है, ठीक है। आंसर दिता भी है बट कैलकुलेट करना है तुसी, ठीक है। आ देखो आंसर दिता हुआ है, इलैक्ट्रॉन दसने है क्रॉसिंग पर सैकेंड थ्रू एनी सैक्शन ऑफ अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट करंट ऑफ 1 एम्पीयर। फार्मूले याद करा रही हैं, रीकाल करा रही हैं कली थोनू, ठीक है। आपां नूं आई दिता हुआ है 1 एम्पीयर, याद करो फार्मूला I इज इक्वल टू NE अपॉन T, ठीक है। इस चो तुसी N कढ़ सकते हो, N इज इक्वल टू IT अपॉन E, ठीक है। इस फार्मूले नाल तुसी ये फर्स्ट वाला जिहड़ा है ये क्वेश्चन मैनू सॉल्व करके दिखाना। उस तो बाद NCERT का ही एक होर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द वायर इन टाइम T इज क्यू, दी वैल्यू यही है। आपां पहलां तां इनिशियल करंट की वैल्यू दसनी है, दैन करंट एट 3 सैकेंड दसना है। आपां नूं ABC जिहड़ी हैगी है कॉन्सटेंट है, उन्हां दी वैल्यू दित्ती हुई है, ठीक है। करंट दसना है, बैक आ जाओ, I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT, मतलब जिहड़ी भी आपां नूं टर्म दित्ती हुई है उहदा आपां डिफरेंशिएशन करना है। डी मैं थोनू जस्ट हिंट दूँगी, बाकी तुसी मैनू करके कमेंट बॉक्स से आंसर जरूर लिखने हैं बच्चे, सारिਆਂ ने लिखने हैं ताकि मैनू समझ आ जाए कि तुसी पढ़ रहे हो, ठीक है। DQ अपॉन DT, आई आ गया ना, ये वैल्यू आ जाएगी आई दी, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना आंदा है, तुसी मैथ च पढ़ चुके हो, ठीक है। ये तुसी मैथ च पढ़िया होया। इस च तुसी इनिशियल करंट जदों वैल्यू दसनी है, दैन T की वैल्यू 0 पुट करनी है। ABC थोनू दिते हुए हैं, देखो आ रहे ABC की वैल्यू थोनू दिती हुई है, ठीक है। ये सारा पुट करके तुसी इनिशियल करंट की वैल्यू दसनी है। सैकेंड पार्ट है T इज इक्वल टू 3 सैकेंड, वो भी तुसी इहदे विच A T B एंड T स्केयर की वैल्यू सारी पुट करके थोड़े को वैल्यू आ जाएगी आई दी। दो आंसर आएंगे ये, ठीक है। दोने आंसर तुसी मैनू ये दसने हैं, हाँ जी। उस तो बाद नैक्सट आ जाओ, टाइप्स ऑफ करंट। नंबर 1 है डायरैक्ट करंट,
ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਇਸ 'ਚ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਆ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੰਟ, a current whose magnitude goes on changing but direction remains constant is called variable current. This curve shows variable current, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो आप इस करंट नूं कहने आ वेरीएबल। उस तो बाद है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट देखो, दिस इज इंटरस्टिंग। यह जी करव शो हो रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अ करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजिस पीरियोडिकली, देखो पीरियोडिकली चेंज हो रही है, एने टाइम च, दैन एने टाइम च, दैन एने टाइम च, फिर एने टाइम च, इक्वल टाइम च, with time called alternating current. It is having no positive no negative terminal. It is represented by sine और cosine curve, ठीक है। इस कर्व ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ दिस कर्व साइन या cosine। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੈप्टर ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦਾ AC ਕਰੰਟ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ AC ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ AC ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AC ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 ਹਰਟਜ਼, ठीक है। उस तो बाद है ट्रांसिएंट करंट। आ करंट विच फ्लो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इन सर्किट आर कॉल्ड ट्रांसिएंट करंट। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੰਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ AC ਐਂਡ DC ਕਰੰਟ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਐਂਡ करंट का यूनिट्स ऑफ करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन T हुंदा, राइट। SI यूनिट ऑफ करंट की है, इट इज कॉल्ड एम्पीयर। नो व्हाट इज एम्पीयर? जे आप फार्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाइए, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ये कहता कि आई का यूनिट हुंदा एम्पीयर, क्यू का थोनों पढ़ाया होया कूलम, टाइम का सैकेंड। दैन 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सैकेंड। 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सैकेंड, ठीक है। मतलब करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पीयर if 1 coulomb of charge is flowing per second through any cross section of the conductor। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, then we say ਕਿ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। CGS सिस्टम च दा यूनिट है स्टैट एम्पीयर। वट इज स्टैट एम्पीयर? स्टैट एम्पीयर इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम अपॉन 1 सेकेंड। स्टैट एम्पीयर की डेफिनेशन, करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 स्टैट एम्पीयर if 1 स्टैट कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। उस तो बाद है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। मास इस कुछ भी नहीं हुंदा हैगा, लेंथ भी नहीं हुंदी, कोई टैंपरेचर नहीं हुंदा, ओनली चार्ज अपॉन टाइम। तो इसनूं आपां कहने एम्पीयर दी पावर 1, या तुसीं इहनूं ऐ कह सकते हो T दी पावर -1 एंड Q1, ठीक है। 1 एम्पीयर किहदे बराबर हुंदा है? CGS एम्पीयर च कन्वर्ट करना होवे 3 × 10⁹ स्टैट एम्पीयर, ठीक है। एक ये तुसीं याद रखनी है, तुहानूं न्यूमेरिकल दे विच लोड़ पै सकदी है ये। ते स्टूडेंट्स
ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।